سائنس پیش کر دی اللہ تعالیٰ۔ آج کل آدھار کارڈ کو فنگر پرنٹ سے جوڑ دیا گیا نا۔ دیکھیے آپ جاتے ہیں آدھار کارڈ بنوانے کے لیے یا پاسپورٹ کے لیے تو آپ کے فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں۔ یہ ایسے کریے، یہ کیا ہے؟ یہ بنانا، یہ انگلیوں کے کوڑ اور اس کے اندر جو چیزیں ہیں ایک آدمی کی دوسرے سے مختلف ہیں۔ پوری دنیا کے اندر ایک آدمی کی دوسرے سے مل ہی نہیں سکتی، سب کی الگ الگ ہے، سب کی کنڈیشنز الگ ہیں۔ آپ جیسے ہی انگلی ایسے اور انگوٹھا جیسے ہی رکھیں گے آ جائے گا محمد جرجیز۔ مولانا جرجیز نے ایک پاسپورٹ بنوا لیا ہندوستان سے، محمد جرجیز، فنگر پرنٹ دے دیے، بن گیا۔ نہیں، انڈیا کے پاسپورٹ سے ہمیں دبئی نہیں جانا ہے، چلو نیپال کے پاسپورٹ سے جائیں۔ نیپال کا ایک پاسپورٹ ہم نے بنوایا، محمد جمیل، نام بدل دیا، کیا نام؟ محمد جمیل بنایا۔ نیپال میں فنگر پرنٹ نہیں لیے جا رہے تھے، غریب ملک ہے، آگے نہیں بڑھ پایا زیادہ، انہوں نے بس لکھ کے دے دیا، بن گئی مہر۔ چلو جرجیز صاحب نے ویزا لگوایا، دبئی پہنچ گئے۔ جرجیز صاحب کا پاسپورٹ محمد جرجیز کے نام سے بن چکا ہے ہندوستان میں، فنگر پرنٹ لیے جا چکے ہیں۔ جرجیز صاحب محمد جمیل کے نام سے پاکستان یا سعودی عرب یا دبئی جا رہے ہیں، محمد جمیل کے نام سے پاسپورٹ نیپالی، دبئی ایئرپورٹ پہ اترے، دبئی ایئرپورٹ پہ امیگریشن میں جاتے ہیں، وہاں فنگر پرنٹ لیے جا رہے ہیں، آئیے باہر نکلنے سے پہلے فنگر پرنٹ دیجئے۔ جیسے ہی مولانا جرجیز نے اپنا انگوٹھا فنگر پرنٹ پہ رکھا، فوراً شو کر رہا ہے آپ کا پاسپورٹ تو محمد جرجیز کے نام سے بن چکا ہے، یہ محمد جمیل کے نام سے آپ آئے ہو، فرضی پاسپورٹ ہے، یہ جھوٹ بول کے آئے ہو۔ فوراً پولیس کو فون کیا گیا، اریسٹ کر دیا گیا، اریسٹ ہم، چلو لے جاؤ ان کو جیل کے اندر۔ کتنا زمانہ ترقی کر گیا، سائنس دیکھ رہے، ایک انگلی سے پکڑ لیا، ہندوستان میں فنگر پرنٹ لیا، یہ فنگر پرنٹ چڑھ گیا، دبئی میں انگوٹھا رکھا، اس نے بتا دیا کہ آپ محمد جرجیز ہیں، بھاگ نہیں سکتے ہو۔ انسان کتنا ہی کہیں مر جائے، ٹرین میں بیٹھ کے سفر کر رہا ہے راجدھانی اور شتابدی ٹکرا گئی، 200 آدمی مر گئے، میری گردن الگ کٹی پڑی ہے، پیر الگ کٹا پڑا ہے، لوگوں کی گردنیں کٹی پڑی، ہاتھ پیر کٹے پڑے ہیں، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ جرجیز صاحب کی گردن تو دکھائی دے رہی ہے لیکن پیر کس کا ہے پتہ نہیں، یہ پیر کس کا ہے، یہ ہاتھ کس کا ہے، باڈی خلطمت ہو چکی ہے، صرف چہرے پہ جانے جا رہے ہیں، باڈیوں کا پتہ نہیں۔ دفنا دیے گئے، جو ملا دفنا دیا گیا، لیکن مولوی جرجیز کا ہاتھ کہیں تو ہے، اس کا پیر کہیں تو ہے، ہاتھ دفنا دیا گیا، پیر دفنا دیا گیا۔ جرجیز صاحب کا سر گھر بھیج دیا گیا اٹاوا، لیکن پیر یہی رہ گیا، ہاتھ یہی رہ گیا، اس ہاتھ کو قبر میں دفنا دیا گیا۔ یہ ہاتھ میں جو فنگر پرنٹ ہے، جو بنانا ہے، جو انگلیوں کے پور ہیں، جو نشان ہے، اللہ تعالیٰ اسی نشان سے جو میچ ہے، اسی سے ہر انسان کی شکلوں کو، اس کی باڈی کو اس کے ساتھ جمع کر کے زندہ کر دے گا۔ جیسے آج ہندوستان کا رہنے والا محمد جرجیز، دبئی میں بھی محمد جرجیز ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ محمد جرجیز ہی رہیں گے، آپ کے نام کے ساتھ رہیں گے، فنگر پرنٹ آپ کو بتا دے گا، انگلیوں کی نشان نہیں بدلتے۔ جب اللہ کی دی ہوئی عقل سے سائنس نے اتنی بڑی چیز بنا دی کہ یہاں کا آدمی وہاں ڈھونڈا جا سکتا ہے، یہاں سے بھاگا ہوا آدمی وہاں پکڑا جا سکتا ہے، تو پھر دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ چلے جائیں اور مر جائیں، لاش آپ کی کئی بہا دی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ قدرت کاملہ ہے، آپ کو آپ کی انگلیوں کے پور سے آپ کو دوبارہ اٹھا دے، پیدا کر دے، جیوت کر دے اور آپ کا حساب و کتاب لے لے۔ دنیا میں کوئی بھاگ نہیں سکتا، بلا قادرین علی
नुसव्विया बनाना, हम तो इंसान के उंगलियों के पोर भी बनाने पर कादिर हैं। अल्लाह कहता है मेरे बंदो, जब हम पानी के कतरे से तुम्हारी उंगलियां बना सकते हैं, पानी के कतरे से तुम्हारे पोर बना सकते हैं, पानी के कतरे से तुम्हारा नाखून बना सकते हैं, पानी के कतरे से तुम्हारा हाथ बना सकते हैं, पानी के कतरे से हम तुम्हारा पैर बना सकते हैं, तुम्हारा घुटना बना सकते हैं, तुम्हारी पिंडली बना सकते हैं, तुम्हारी रान बना सकते हैं, तुम्हारी कमर बना सकते हैं। उसी पानी के कतरे से इतनी मजबूत रीढ़ की हड्डी बना सकते हैं। उसी पानी के कतरे से हम तुम्हारा सर इतना मजबूत कि हथौड़े मारो तब जाकर टूटे, ये सर बना सकते हैं। और उसी पानी के कतरे से हम इतना नरम भेजा बना सकते हैं कि दो उंगलियों के बीच में रख के मसलना चाहो तो मसल दो। लोगों, जब ये सारे काम हम पहली बार तुम्हारी माँ के पेट में कर सकते हैं, और तुम्हारी माँ के पेट में हम 9 महीने तुम्हें जिंदगी दे सकते हैं, वहां हवा पहुंचा सकते हैं, तेरी ग़िज़ा का इंतजाम वहां कर सकते हैं, तो आए लोग, आए मेरे बंदो, मुझे बताओ, जब मैं इंसान को बाहर ले आया, माँ के पेट से उसको वजूद में ले आया, उसने दुनिया में आंखें खोली, हाय मेरे बंदे, जब तू दुनिया में आया तो तू रोटी नहीं खा सकता था, चावल भात नहीं खा सकता था, दाल नहीं खा सकता था, बिस्किट नहीं खा सकता था, इतना कमजोर था। तेरी माँ की पिस्तान में अभी तक दूध नहीं था, लेकिन तेरे बाहर आते ही मैंने तेरी ग़िज़ा तेरी माँ की पिस्तान में भर दी, तेरी माँ की पिस्तान में हमने दूध भर दिया, तेरे जीने का इंतजाम कर दिया, जिंदगी गुजारने के लिए तेरे पैदा होने से पहले तेरी माँ की पिस्तानों में तेरी ग़िज़ा मैंने भर दी। तू अपनी माँ की ग़िज़ा खाने लगा, दूध पीने लगा, बचपना तेरा गुजरने लगा, धीरे धीरे तू जवान हो गया, 15 साल से 25 साल तक नौजवानी में तूने गुजारे, फिर 25 साल तक तूने जवानी में गुजारे, फिर 40 साल के बाद 55 साल तक अधेड़ उम्र में तूने गंवाया, फिर 55 साल से लेकर बकिया सारी जिंदगी तूने बुढ़ापे की गुजारी, 70, 75, 80 साल की जिंदगी में तू मर गया। तू वही है जो पानी के कतरे से तुझे पैदा किया था, और अब तू मर गया, कब्र में दफन कर दिया गया। तो आए मेरे बंदो, मुझे बताओ, जब मैं पहली मर्तबा माँ के पेट से निकाल सकता हूँ, बड़ा कर सकता हूँ, खिला पिला सकता हूँ, कूड़ा करके मार सकता हूँ, अब कब्र में दफन हो गया, जब तू था ही नहीं तब मैं तुझे ले आया, अब तो तू है और वजूद है, कब्र में दफन है। तो आए इंसानों बताओ, आए मेरे बंदो बताओ, मेरे बंदो बताओ, आए मेरे बंदो मुझे जवाब दो, अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता, तो क्या वो अल्लाह इंसान को मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? क्या वो इंसान को उसकी कब्र से दोबारा नहीं निकाल सकता? इंसान को मौत देने के बाद क्या वो दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं है? दोबारा जिंदगी मिलना है, भाग नहीं सकते, राह फरार नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यही तो कहा था, ऐ अल्लाह, कैसे तू मरने के बाद इंसान को दोबारा जिंदा करेगा? रब्बी अरिनी कैफा तुहिल मौता, ऐ अल्लाह मुझे दिखा, तू इंसानों को, लोगों को मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा? काला वलम तुमिन, अल्लाह ने कहा इब्राहीम ईमान नहीं है, मानते नहीं हो, भरोसा नहीं है मुझ पर? काला वला है, ऐ अल्लाह ऐसा कैसे हो सकता है कि तुझ पर भरोसा ना हो? ईमान तो है, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन मेरे दिल को इत्मीनान हो जाएगा, देख लूंगा तो सुकून मिल जाएगा, मेरे दिल को करार आ जाएगा। मुझे दिखा दे कि कैसे तू मरने के बाद इंसान को जिंदा करेगा। फरमाया इब्राहीम, हिंदू दिखाओ मुझे कितने, मुझे बताओ इधर लाओ हिंदू। आपने लिखा वेद पढ़ना है मौलाना साहब, मुझे हिंदू भाई जितने हो इधर आ जाएं आगे, हम ऐसे नहीं मानेंगे। आप कह रहे हैं तो दिखाओ मुझे कहां है। रात के 12 बजे आप हमें टाइम दोगे, फिर कहोगे वेद पढ़ो। यार मौत के ऊपर तकरीर चल रही है, इतना जबरदस्त फिक्र आखिरत, आप कह रहे वेद पढ़ो, वेद पढ़ो। मुसलमानों को हम वेद सुनाने आए हैं? यार मुझे बताइए, हिंदू भाई इधर आए तो जरा, कितने हिंदू भाई है, जरा हाथ उठाओ तो। मुसलमान हाथ उठाएंगे तो कयामत के दिन ये जवाब देंगे, हिंदू कितना इधर बताएं? एक हिंदू भाई नहीं वेद पढ़ रहा है, ये वेद इनको सुनाएंगे हम? यार अजीब ताज्जुब है हमें।
मेरी तकरीर हो रही, मौत पर वेद सुनाओ। अब गुजर दूं मौत में, हम गुजर दे होम होम दूसरे मंत्र वेद। आप ही को सुनना वेद, हमें तो नहीं लगता कि दूसरा कोई सुनना चाहता है। आप लोग कौन कितने लोग वेद सुनना चाहते हैं बताइए, हम अपनी तकलीफ बदल देते हैं। बताइए तो, कुरान की आयतें छोड़कर वेद कौन सुनना चाहता है, मुझे बताओ तो। आप भी नहीं उठा रहे हैं हाथ, एक आदमी हाथ नहीं उठा रहा, एक आदमी हाथ उठा रहा हो तो चलो। अरे अच्छी ताज्जुब की बात है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, कई अल्लाह मुझे बता, दिखा कैसे तू मरने के बाद जिंदा करेगा। कहा इब्राहिम ईमान नहीं है तुम्हें? है, लेकिन मेरे दिल को इत्मीनान मिल जाएगा, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा, मेरे दिल को करार आ जाएगा। फरमाया ठीक है, हाँ इब्राहिम, फखुज़ अर्बअतम मिनत तैर, 4 परिंदों को लो अलग अलग, एक कबूतर, एक फला, एक फला, 4 परिंदे लो अलग अलग। माइक कहां चला गया? अच्छा रुकिए ना भाई, आपको 2-4 मंत्र पढ़ देंगे, ये बात तो हो जाने दीजिएगा। फखुज़ अर्बअतम मिनत तैर, 4 परिंदे लीजिए, 4 अलग अलग, उनको काटिए, अभी नहीं, फसुरहुन्ना इलैक, उनको हिला लीजिए, उनको पाल पोस कर बड़ा कर दीजिए, उनको मानूस कर लो। कैसे? कभी आपने सर्कस देखा? सर्कस में जानवर होते ना, जब उनका मालिक उनको मानूस कर देता है तो उठो तो उठ जाता है। कभी कभी बंदर का नाच दिखाते हैं लोग, तो कहते हैं बंदर से ससुराल कैसे जाओगे, तो वो बताता है ऐसे, तो मानूस कर लेते हैं, मानूस हिला लिया जाता है, उठो उठ गया, बैठो बैठ जाओ, आवाज पहचानने लगता अपने मालिक की। हाय इब्राहिम, 4 परिंदे लो, उनको हिला लो, उनको मानूस कर लो। वो 4 परिंदे हजरत इब्राहिम को खूब पहचानने लगे। हजरत इब्राहिम कहते आह आह, वो आ जाते। इब्राहिम कहते चलो खाओ, वो चले जाते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते खाओ, वो खाने लगते। यानी इतना हिला लिया, मानूस कर लिया। वो परिंदे जब इब्राहिम की आवाज सुनते आह आह तो आ जाते, कहीं भी होते आ जाते, इधर बैठे आह आ जाते। क्यों? इतना मानूस कर लिया, पाल पोस कर इतना हिला लिया। अल्लाह ने कहा इब्राहिम अब इनको काटो। 4 परिंदों को काट दिया और 4 का गोश्त मिला दिया, इसकी हड्डी उसमें, उसकी हड्डी इसमें, इसका गोश्त उसमें, उसका गोश्त इसमें मिला दिया। 4 परिंदों के गोश्त को खल्त मल्त करके हिला बिला के मिला के कहा आए इब्राहिम अब क्या करना है? थोड़ा थोड़ा सा हर पहाड़ के ऊपर रख दो, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा इधर गोश्त, 2-3 बोटी इधर, 2-3 बोटी इधर, 2-3 बोटी इधर, 2-3 बोटी इधर, 2-3 कई पहाड़ों पे रख दिया। आए इब्राहिम जाओ अपने मकान पर, जाओ अपने घर की छत पर। चले गए, बुलाओ इन परिंदों को, आवाज दो, जिनको काट दिया, जिनको खल्त मल्त कर दिया, जिनका गोश्त, उनको आवाज दो। आए इब्राहिम जब तुम उनको आवाज दोगे तो ये दौड़ते हुए परिंदे चले आएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से परिंदों की बोटियों को, गोश्त को अलग अलग पहाड़ पर रखा और अपने घर पे आके कहते हैं आह आह तुम मदोहुन्ना, बुलाओ उनको। बुलाया, आह आह, जैसे ही कहा आह, इस परिंदे की बोटियां उधर गई, उसकी इधर आई, जिस परिंदे की हड्डियां थी अलग हुई और वो सब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आंखों के सामने 4 परिंदे जिंदा हो रहे हैं। उसकी हड्डियां उसमें जा रही हैं, उसका गोश्त उसमें जा रहा है। जिस परिंदे का जो गोश्त, जो हड्डी थी उनके सामने जिंदा हो रही है और वो दौड़ते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले आए, उड़ते हुए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास चले आए। कहा ऐसे हम इंसान को मरने के बाद जिंदा करेंगे, सिर्फ कहेंगे उठ कब्र से, ए जर्जीस उठ, उठ गए, ए फला उठ, उठ गया। कब्र से इंसान उठेगा, उठ जाएगा। ये मत देखिए कि कब्र में अजाब, हम तो रोज जाते हैं अजाब नहीं होता है। कहां होता है? टूटी फूटी कब्रें मिली। मौत को याद करिए,
मौत को जब भी कब्रिस्तान जाया करो, थोड़ी देर रुक जाया करो, टूटी फूटी हड्डियों को देख लिया करो। इब्न कय्यिम की किताब है, इब्न कय्यिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब, इब्नुल जौजी की किताब है सिफतुस सफ़वा। इब्नुल जौजी ने सिफतुस सफ़वा के अंदर बड़ा दिलचस्प वाक़या नकल किया है, और वो वाक़या यह है कि वाक़या है खुरासान का दरवाजा है, खुरासान का दरवाजा है, उस दरवाजे वो शहर की तरफ खुलता है। यहया इब्न अय्यूब अपने घर से खुरासान के दरवाजे पर पहुंचते हैं जो शहर की तरफ खुलता है। वो उस दरवाजे को पास जब पहुंच जाते हैं तो वहां से उनका आबाई कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है, जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है। यहया इब्न अय्यूब खुरासान के दरवाजे पर बैठ गए और कब्रिस्तान पर नजर डालने लगे। रात के तकरीबन ऐसे ही 2-2:30 बजे होंगे, 3 बजे होंगे, यही कोई टाइम होगा, 1-1:30-2 बजे का। खुरासान के दरवाजे पर बैठे हुए हैं और कब्रिस्तान पर नजर डाले हुए हैं, देख रहे हैं टूटी फूटी कब्र की तरफ नजर जाती है और अपनी मौत को याद कर रहे हैं, अपनी मौत को याद करते हैं। अपनी मौत को अचानक उनकी नजर पड़ती है कि उसी कब्रिस्तान के अंदर एक शख्स कंबल ओढ़े हुए चला रहा है, एक आदमी कंबल ओढ़े हुए चला रहा है। उसने अपना चेहरा छिपा रखा है, उसको मालूम नहीं है इस कब्रिस्तान में पहले से कोई दरवाजे पर बैठा हुआ है। वो शख्स कंबल से अपना चेहरा छिपाए हुए है और एक एक कब्र को देखता जा रहा है। और जहां उसने सबसे फूटी हुई, सबसे टूटी हुई जो कब्र देखी, सबसे फूटी हुई और टूटी हुई जो कब्र देखी, उसी कब्र के पास जाकर बैठ गया। उसी कब्र के पास जाकर बैठकर रोने लगा। हड्डियों को देखता जाता, रोता जाता, खोपड़ी को देखता जाता, रोता जाता, टूटी फूटी कब्र को देख रहा और रो रहा है। यहया इब्न अय्यूब ने कहा इस आदमी के पास चलना चाहिए, मैं भी अपनी मौत को याद करने के लिए रात में जाग रहा हूं और ये आदमी भी इबरत हासिल करने के लिए आया है। चले हम अपना गम बांटे, इस आदमी को देखना चाहिए ये कौन है। लोगों रात के अंधेरे में अकेले में लोग उठकर कब्रिस्तान जाया करते थे और वहां जाकर अपनी मौत को याद किया करते थे। मेरे भाइयों, यहया इब्न अय्यूब उस कब्रिस्तान के अंदर घुसते हैं, कंबल से उस ओढ़े हुए आदमी को देखते हैं, पीछे से हाथ थपथपाते हैं, देखें ये कौन है जो इतनी रात में यहां से आया है। उस आदमी ने पीछे मुड़ के देखा, उस आदमी ने पीछे मुड़ के देखा तो यहया इब्न अय्यूब उसको पहचान गए। वो उनका जिगरी दोस्त निकला। कहने लगे तुम तो सादून हो, तुम तो सादून हो। कहा आए यहया तुम यहाँ कैसे? यहया इब्न अय्यूब कहते हैं मैं अपनी मौत को याद कर, ये कब्रिस्तान में टूटी हुई कब्रों को देखकर अपनी मौत को याद कर रहा हूं। यहया इब्न अय्यूब की बात सुनकर सादून ने कहा हम भी अपनी मौत को याद करते हुए यहाँ आए हैं, इससे अच्छी जगह कोई नहीं है इबरत की, नसीहत की। आए यहया कबल इसके कि हमारे ऊपर कोई रोए, कबल इसके कि हमारे ऊपर कोई रोए, हम इन मुर्दों के हाल पर रो लें और अपनी आखिरत बना लें, अपने गुनाहों से तौबा कर लें। आए यहया कबल इसके कि हमारे ऊपर कोई रोए, हम इन मुर्दों के हाल पर रो लें, आओ मिलके इबरत हासिल करते हैं। इतना कहना था, यहया इब्न अय्यूब की हिचकियां बन जाती है, रोते रोते हाल खराब हो जाता है। आए सादून क्या यही वो हड्डियां हैं जो कल हमारी तरह थी, लेकिन कल हमारी हड्डियां इस तरह हो जाएंगी। आए यहया कल ये लोग हमारी तरह सोचा करते थे, लेकिन कल हमारी खोपड़ी भी इनकी तरह हो जाएगी। ये सोचते हैं, बोलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं और एक दर्दनाक चीख मारते हैं। यहया इब्न अय्यूब और जमीन के ऊपर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। हजरत सादून उनकी पेशानी का पसीना पोंछते जा रहे हैं और पानी के छींटे मारते जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद यहया इब्न अय्यूब को होश आता है। यहया इब्न अय्यूब को थोड़ी देर के बाद होश आता है तो सादून कहते हैं आए यहया काश तुम जमीन पर गिरे थे, बेहोश होने के बजाय अगर मर जाते, काश तुम बेहोश होने के बजाय मर जाते, तुम्हारी रूह निकल जाती तो ये मौत से ज्यादा पाकीज़ा मौत कोई नहीं होती। आज तुमसे बड़ा खुश नसीब कोई नहीं होता, लेकिन तुम सिर्फ बेहोश हुए हो। आज अल्लाह का खौफ, अज़ाब कब्र के डर की वजह से तुम गिरे ही थे, तुम मर जाते तो ये मौत तुम्हारे लिए बड़ी बाबरकत मौत होती।
लेकिन तुम सिर्फ बेहोश हुए आए। या अगर मर जाते तो बड़ी बड़ी खुश नसीब वाली मौत होती। मेरे भाइयों, इस तरीके से लोग अपनी मौतों को याद किया करते थे। यहाँ तो जो चाहो खाओ, जो चाहो पियो, पैसा चाहे जैसा। मेरे भाइयों, मौजू है हलाल और हराम जो देख रहे हैं आप इश्तिहार के अंदर, जरा तसव्वुर करो, एक रिक्शा चलाने वाला 9 रिक्शा चलाता है, 9 रुपया कमाता है। अब सुनो, 9 रुपया कमाता है, 5 वक्त का नमाजी है, मेहनत कर रहा है, मेहनत की कमाई है 9 रुपया उसने कमा लिया। उसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वो मार्केट जाता है, कुर्ता खरीदता है, कमीज पंजाबी खरीदता है। उसने बताया कि 14 रुपए 13 रुपए में मिलेगा। इसने कहा मेरे पास तो 9 है। बहुत मिन्नत से मानत की, नहीं माना। वो कहने लगा आपके लिए 10 रुपए में लग जाएगा, हमारे पास तो 9 है। नहीं, मौलाना जर्जीस को रहम आ गया, ये बेचारा गरीब आदमी है, रिक्शा चलाता है, 9 रुपया है, 5 वक्त का नमाजी है, 1 रुपया इस बेचारे को दे दो, उसका कुर्ता आ जाएगा। उसने 1 रुपया मुझसे ले लिया, लेकिन ये जानता है कि मौलवी जर्जीस के पास ये रुपया सूद का है, वो जानता है कि मौलवी जर्जीस के पास ये रुपया हराम का है, वो ये जानता है कि मौलवी जर्जीस का पूरा बिजनेस और कारोबार हराम पर टिका हुआ है, हलाल का तो कोई बिजनेस है ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद उसने ले लिया 9 रुपए हलाल के, 1 रुपया उसने मेरा मिलाकर कुर्ता ले लिया और पहन लिया। नमाज पढ़ने के लिए अजान की आवाज सुनता है, चला जाता है। काबे के रब की कसम, जब तक वो कमीज, जब तक वो कुर्ता उसके जिस्म पे रहेगा, उसकी एक भी नमाज कबूल नहीं होगी, एक भी रोजा कबूल नहीं होगा, एक भी नफली और फर्ज इबादत उसकी कबूल नहीं होगी, क्योंकि वो जानता है कि 1 रुपया इसमें हराम का मिला हुआ है। मौलवी जर्जीस का पास तो सब कारोबार सूद का है, फिर ये 1 रुपया उन्होंने मेरा मदद जो की। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब 9 रुपया हलाल का हो, पसीने की कमाई हो, रिक्शा चलाकर हमने कमाया हो, जंगल से लकड़ियां काट कर मार्केट में बेची हो, तब 9 रुपया कमाया हो, 1 रुपया हराम का मिल जाए तो वो पूरे 9 रुपए को खराब कर देता है। पानी की एक बाल्टी आपके पास है, पेशाब का एक कतरा पूरी बाल्टी पानी को नापाक कर देता है। आओ मेरे भाइयों, फिक्र आखिरत के मौजू से अपनी बात को टच करो और गौर करो कि हमारी कितनी नमाजें कबूल हो रही होंगी, हमारे कितने रोजे कबूल हो रहे होंगे, हमारे कितने हज कबूल हुए होंगे, हमारी ज़कात कबूल हुई होगी। ये मदरसों में जो हम चंदा दे रहे हैं, हम अपने कारोबार पे पहले नजर डालें, लेने वाले भी नजर डालें कि किन से ले रहे हैं, और देने वाले भी नजर डालें कि हम कौन सा माल दे रहे हैं। कयामत के दिन जो सवाल होगा, सवाल होंगे, उससे पहले कोई आदमी अपना कदम हिला नहीं सकता। ला तज़ालु क़दम अब्द यौमल क़ियामा हत्ता युसअला अन अर्बा व फी रिवायत अन खम्स। एक रिवायत में आता 4 सवाल, एक में आता 5 सवाल। जब तक पूछ न लिए जाए इंसान अपना कदम नहीं हिला सकता। व अन उम्रिही फीमा अफ़ना। पहला सवाल ये होगा, आए 70-80 साल के बुढ़े, बता तूने अपनी उम्र कहां गंवाई? हमने जो 80 साल तुझे उम्र दी, बता कहां गंवाई? जवाब देना हुक्का पीने में, जवाब देना शतरंज खेलने में, जवाब देना अपने बीवी से लड़ने में। आए 70-80 साल के बूढ़ो, जवाब ढूंढ लो। अल्लाह ने सवाल बता दिया, पर्चा आउट कर दिया, जवाब की तैयारी करने यहां भेजा है। जवाब की तैयारी करो। अन उम्री फीमा अफ़ना। जो उम्र दी बताओ कहां गंवाई? जो उम्र दी 80 साल 90 साल जो तुम जिंदा रहे, कहां गंवाया? पहला सवाल। फिर उम्र के एक मखसूस हिस्से का अलग से सवाल होगा, वान शबाबिही फीमा अबला। नौजवानी कहां गुजारी, जवानी कहां गुजारी, ये बताओ। इब्न तैमिया ने उम्र के 5 हिस्से बनाए हैं। 1 साल से लेकर 14 तक बचपना, 15 से लेकर 24 तक नौजवानी, 25 से लेके 39 तक जवानी, 40 से लेके 54 तक अधेड़ उम्र, और 55 से लेके आगे जितनी उम्र जाए वो बुढ़ापा। ये अपने तैमिया ने उम्र के हिस्से बताए। 1 से लेके 14 तक ये बचपना है, 15 से लेके 24 तक ये नौजवानी है, 25 से लेके 39-40 तक ये जवानी है। अल्लाह जवानी के बारे में एक अलग से सवाल करेगा, वान शबाबी फीमा अबला। 15 से लेके
गंवाई। ये 15 से लेकर 40 साल तक जितने लोग यहाँ बैठे इस जवाब की तैयारी करें। आपसे इस सवाल का एक अलग से हिसाब होगा। क्या जवाब दोगे? लड़कियों से रात रात भर व्हाट्सएप चलाने में, मैसेंजर पर बात करने में, पूरी रात जियो में 1.5 GB गंदी फिल्में देखने में, पूरी रात लड़कियों से कनेक्शन भिड़ाने में और सेटिंग बनाने में। जवाब ढूंढ लो। आए 15 साल से 40 साल के जवानों, ये एक अलग से सवाल होगा, कहां इस उम्र को तुमने गंवाया? वन शबाबी फी माबला, अपनी जवानी कहां गुजारी? वहां माली ही। तीसरा सवाल माल के ताल्लुक से होगा। तीसरा सवाल माल के ताल्लुक से होगा, मैं आईना तसबा, कमाया कहां से? जरिया क्या था? चाकू मार के छीना, कोई आ रहा था उसकी बाइक लूटी, और रात में बेचारी सफर कर रही है, पिस्टल रखकर उनके जेवर छीने। कमाया कहां से? तीसरा सवाल यह है, कमाया कहां से? और चौथा सवाल यह है, खर्च कहां किया? आईना अनफक्ता, ये भी बताओ कमाया कहां से, और ये भी जवाब दो खर्च कहां किया। सोच लो, इसके बगैर कदम हिल नहीं सकता। कमाया कहां से ये भी बताओ, और खर्च कहां किया ये भी बताओ। और पांचवा सवाल हम मौलवियों से होगा, इल्म हासिल किया, उस पर खुद कितना अमल किया और दूसरों तक कितना पहुंचाया। ये 5 सवाल जब पूछ न लिए जाए, कयामत के दिन कोई आदमी अपना कदम हिला नहीं सकता। हिसाब किताब हो गया। अब सुनो नौजवानों, हिसाब किताब हो गया, सिफारिश हो गई, जन्नतियों का जन्नत में जाने का फैसला हो गया, जहन्नमियों का जहन्नम में जाने का फैसला हो गया। अल्लाह कहेगा, आए फरिश्तों, जन्नतियों को जन्नत के अंदर ले जाओ। ये माइक वाले को ऐसे रोक रोक के पैसे देना, इसका हिसाब ऐसे ही करना, एकदम तार छोड़ देता है। आए जन्नतियों, फरिश्तों जन्नतियों को जन्नत में ले जाओ। आए जहन्नमियों, फरिश्तों जहन्नमियों को जहन्नम में दाखिल कर दो। मैदान महशर होगी। नौजवानों जरा इस मंजर को देखना। इस मंजर को मैंने लास्ट में आपके सामने रखा है ताकि ये असर जाते वक्त भी आपके दिमागों में छाया रहे, छाया रहे। जन्नतियों को फरिश्ते जन्नत की तरफ ले जा रहे होंगे, जहन्नमियों को फरिश्ते जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे। इतने में एक फरिश्ता आएगा, उसके हाथ में मरा हुआ दुम्बा होगा, उसके हाथ में मरा हुआ दुम्बा होगा। हमें और आपको जो मौत आती है दुनिया में, जो मौत आई, इस मौत को मरे हुए दुम्बे की शक्ल में पेश किया जाएगा। मैंने कहा था ना, सबको फना होना है, सबको। जमीन फना, आसमान फना, सूरज फना, चांद फना, तो ये जिंदगी भी फना हुई है, तो मौत को भी फना होना है, मौत को भी मौत आना है। मौत भी अल्लाह की मखलूक है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह की मखलूक तो मौत भी और मौत को भी फना होना है। अल्लाह फरिश्ता मरे हुए दुम्बे को लेकर आएगा, मरे हुए दुम्बे को, और कहेगा, आए जन्नतियों, जन्नत में जाने से पहले जन्नत के किनारे खड़े हो जाओ। आए जहन्नमियों, जहन्नम में जाने से पहले जहन्नम के किनारे खड़े हो जाओ। जन्नती जन्नत के किनारे खड़े हो जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम के किनारे खड़े हो जाएंगे। फरिश्ता पूछेगा, आए जन्नतियों, मेरे हाथ में क्या है? जन्नती कहेंगे मौत। जहन्नमियों, तुम बताओ मेरे हाथ में क्या है? जहन्नमी भी कहेंगे मौत। आए जन्नतियों, आए जहन्नमियों, तुम्हें कोई चीज धोखे में न रखे, इसलिए तुम्हें एक चीज बताने आया हूं। क्या? जन्नती और जहन्नमी कहेंगे, क्या ये मौत है? दुनिया में तुम्हें जो मौत आती थी, ये मौत को अल्लाह ने मरे हुए दुम्बे की शक्ल में मुझे दिया है। फिर वो फरिश्ता उस मरे हुए दुम्बे को जमीन पर लिटा देगा। आए जन्नतियों और आए जहन्नमियों, दोनों देखो। जन्नती देखेंगे, जहन्नमी देखेंगे, वो उस मरे हुए दुम्बे की गर्दन काट देगा, वो दुम्बे पर छुरी चला देगा, ज़िबा कर देगा। कहेगा, जन्नतियों, तुम हमेशा के लिए जन्नत में जाओ, अब तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी, क्योंकि मौत को भी मौत आ गई है। मौत ही को जब मौत आ गई तो अब मौत आने का सवाल नहीं। आए जहन्नमियों, तुम भी हमेशा के लिए जहन्नम में जाओ,
तुम्हें भी अब कभी मौत नहीं आएगी, क्योंकि मौत को भी मौत आ चुकी है, मौत को भी फना किया जा चुका है। आए जन्नतियों, जन्नत हमेशा के लिए तुम्हारे लिए, आए जहन्नमियों, जहन्नम हमेशा के लिए तुम्हारे लिए। जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमियों को यह झटका बहुत बड़ा लगेगा, वो जहन्नम में दाखिल कर दिए जाएंगे। जन्नती जब अपने बालाखाने में घुसेंगे, अपने कमरों की, महलों की खिड़कियां खोलेंगे, उनको जहन्नम का एक छोटा सा तबका नजर आएगा, एक छोटा सा हिस्सा नजर आएगा। किसी की गर्दन कटी पड़ी है, किसी का हाथ निकला पड़ा है, किसी का पैर कटा पड़ा है। वो जन्नती चीख कर कहेंगे, आए जहन्नमियों, तुम तो दुनिया में मेरे साथ रहते थे, खाते थे, पीते थे, चलते थे, उठते थे, बैठते थे, सोते थे, लेन देन करते थे, कारोबार करते थे, बिजनेस करते थे, हमारे यहाँ शादी ब्याह करते थे। हम जन्नत में, तुम जहन्नम में। आखिर तुम दुनिया में ऐसे कौन से काम करते थे कि जिसकी वजह से तुम्हें जहन्नम में आना पड़ रहा है? जहन्नमी ऊपर देखेंगे, वो शिकायत के लहजे में कहेंगे, आए जन्नतियों, हमारे दुनिया में बहुत बड़े बड़े गुनाह के काम हुए थे, जिसकी वजह से हम जहन्नम में आए। सबसे बड़ा गुनाह मेरा ये था, सबसे बड़ा रीजन मेरा ये है जहन्नम में आने का। लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम दुनिया में नमाजें न पढ़ा करते थे, हमने दुनिया में नमाजें छोड़ी। लम नकु नुतइमु अला तामिल मिस्कीन, हमने मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाया, हम मिस्कीनों को, फकीरों को, भूखों को खाना नहीं खिलाया करते थे। मेरे भाइयों, फिर वो जहन्नमी जन्नतियों से कहेंगे, अरे जन्नतियों, दुनिया के समंदर मुझे दे दो, खुश्क हो जाएंगे, मेरी प्यास नहीं बुझेगी। समंदर खुश्क हो जाएंगे, लेकिन मेरी प्यास नहीं बुझेगी। थोड़ा सा जन्नत का, बेहयात का एक कतरा, एक बूंद मेरे हलक में डाल दो, मेरा गला सूखा जा रहा है। जन्नती अपनी खिड़की बंद कर देंगे और कहेंगे, अरे जहन्नमियों, मैंने तो हमदर्दी के नाते पूछ लिया है, हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। तुम जन्नत का बेहयात मांग रहे हो, पानी का एक कतरा मांग रहे हो, अल्लाह ने तो तुम्हारे ऊपर जन्नत की महक और खुशबू भी हराम कर दी है, हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। उस जहन्नम से डरो, उस जहन्नम से डरो, कुछ काम कर लो, कुछ नेक अमल कर लो। अल्लाह के नबी जब सफरे मेराज पे गए और जहन्नम देखा, तो आपने खून का एक तालाब देखा, दरिया। उस दरिया के अंदर कुछ लोग गोता लगा रहे हैं, बदबूदार खून पी रहे हैं, निकलना चाहते हैं, फरिश्ता पत्थर मारता, उनको बीचों बीच दरिया में कर देता। पूछा जिब्रील, ये कौन लोग हैं? फरमाया, ये वो लोग हैं जो दुनिया में सूद खाया करते थे, जो दुनिया में ब्याज खाया करते थे, जो दुनिया में लोगों को 1 लाख रुपया दिया करते थे गरीब की मदद करने के लिए, और जब लेते थे तो 1,10,000 वसूल किया करते थे। ये उनकी मजबूरी का फायदा उठाते थे, ये सूद पर रुपया देते थे, 1 लाख ले लो, 1 महीने के बाद 1,10,000 देना। ये सूदी कारोबार करने वाले लोग अपने गरीब भाइयों का खून पीते थे, आज उनको बदबूदार खून पिलाया जा रहा है। मेरे भाइयों, हर जगह ये चीज मिलेगी, हर जगह। ये जन्नत का जिक्र भी वेदों में मौजूद है। स्वर्ग, प्रधान नगर, पैराडाइज जिसको बाइबल में कहा गया है, ये पैराडाइज, उसमें जो नियामतें मिलेंगी, दूध की नहर, शहद की, ये सारी की सारी जिक्र वेदों के अंदर मौजूद है, वेदों के अंदर। और सबसे ज्यादा वेदों में तो तौहीद का जिक्र है, तौहीद का, एकेश्वरवाद का जिक्र है, एकेश्वरवाद का। तो मेरे भाइयों, हमें तौहीद को अपनाना है, और उसके बाद वो एकम ब्रह्मादित्य नास्ते नास्ते किंचन, एक ही ब्रह्मा की पूजा करो, दूसरा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, और जो मांगना है उसी से मांगो। यचित्तियो यो पिम्बिम्मा नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, वही है सब कुछ देने वाला, उसके अलावा कोई तुम्हें देवी देवता ऐसा नहीं है जो तुम्हें कुछ भी दे सके। नस्तस्मा देवी शोरी ऋषा, कोई भी देवी देवता तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता है। बसुर दयामाना, उसी से मांगो जो बड़ा दयालु है, कृपालु है, दयावान है। जब भी तारीफ करो तो उसी की करो। महीदेवस्य सवितु परिष्टुति, महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा है, जिसके लिए सारी की सारी तारीफ है। और ये सारे काम नबी मोहम्मद के तरीके पर करो। वेदाहमिद पुरुष महानिमादित्य और तपस प्रस्ताव, अहमद नाम का आदमी जन्म लेगा, पुरुष इंसान होगा, महानिमादित्य बहुत बड़ा महान पुरुष होगा। वरुण तपसा, ईश्वर का बहुत ही ज्यादा नाम लेगा। तपसा, उसकी बहुत ज्यादा भक्ति करेगा। प्रस्ताव, उसी के नक्शे कदम पे चलना, उसी की कुटिया में चले जाना, उसी की बात मानना। यन्ने आया, अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाए। अहमद के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
इरम जनौब शत्रुनरा शंसिस्तश्विष्यते षष्ठ्यं सहस्त्रनवीतं च कौरम मरुष्मे धूदद्महे उष्ट्रायस्य परवाहिरो वधूमन्तो द्युदशा। उसकी सवारी ऊंटनी होगी, वो उस इलाके में पैदा होगा जहां ऊंट की यात्रा होगी, ऊंट पर बैठेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ऊंट का सफर बहुत ज्यादा किया करते थे, यहां तक कि आपने जो खुतबा हज्जतुल विदा आपने दिया वो भी एक ऊंटनी के ऊपर दिया, जो कस्बा नाम की ऊंटनी थी, उसी ऊंटनी के ऊपर आपने आखिरी खुतबा भी दिया हज्जतुल विदा के नाम से जो मशहूर है। तो आप उस इलाके में आए जहां ऊंट रेगिस्तान में मरुस्थल निवासी ने, वो रेगिस्तान के अंदर पैदा होगा। रेगिस्तान सऊदी अरब की सरजमीन का नाम है, उसी में आप पैदा हुए और ऊंट की सवारी किया करते थे। बधूमन्तो द्युदशा, बधू मानी बीवी और पत्नी और बहू दोनों के लिए बोला जाता है। जिसकी बीवियों की गिनती होगी द्युदशा, द्यु 2 दशा 10, 2 और 10 12, यानी जिसकी बीवियों की गिनती 12 होगी। 12 बीवियों वाला, जिसकी 11 बीवी और एक बाबी मारिया कितिया दोनों जोड़ा जाए तो 12। 12 औरतों को रखने वाले अगर कोई है तो सिर्फ एक हैं। बहुत से नबियों के नाम लिए गए, बहुत सौ के नहीं। 1,24,000, 1,44,44 कितने बताए गए हैं, इस हालांकि कोई सही रिवायत नहीं है। कुरान ने तो सिर्फ इतना कहा कि हमने कुछ रसूल भेजे जिनका जिक्र आपसे कर दिया और कुछ ऐसे भेजे जिनका जिक्र आपसे नहीं किया। जितने भी नबी आए किसी नबी की 12 बीवियां नहीं थी। सुलेमान 99 तक पहुंच जाते हैं, दाऊद 1000 तक पहुंच जाते हैं, इब्राहिम की 2 बीवी सारा और हाजरा का जिक्र मिलता है। हाँ, राम की एक पत्नी सीता का जिक्र मिलता है। राम के पिता राजा दशरथ की 3 पत्नियों का जिक्र मिलता है। कृष्ण जी की सबसे ज्यादा थी 16,108, लेकिन 12 बीवियों वाले को आखिरी नबी बताया गया है। और आखिरी नबी कौन होंगे? जो 12 बीवियां रखेंगे, जिनकी 12 औरतें होंगी। तो 12 बीवियों वाले अगर कोई थे तो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उनका नाम मोहम्मद होगा। अज्ञान हेतु किरत मोहम्मदाधिकारम नाशम विधायक हितदोदयत विवेका। मोहम्मद नाम के शख्स होंगे, आएंगे अंधेरे को नाश करेंगे। मोहम्मदाधिकारम नाशम, मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश करेंगे। विधायम हितदोदयते, बड़े दयालु होंगे और सबके हितकारी होंगे। हितदो, सबके हितकारी होंगे। दयते, सब पर रहम करने वाले होंगे। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, ऐसी मोहम्मद रसूलुल्लाह सबके हितकारी होंगे। यानी नबी की नबुवत सबके लिए होगी, मोहम्मद की रोशनी सबके लिए होगी। जो आप पैगाम लेके आएंगे वो सबके लिए होगा। हितदो दयते, और वो बड़े रहम करने वाले होंगे। इस दयते पर तो अल्लाह ताला ने पूरी आयत ही नाजिल कर दी। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको रहमत बनाकर भेजा है, आप संपूर्ण जगत के लिए रहमत है। हितदो दयते विवेका, वो महान प्रचारक होंगे, महान प्रचारक होंगे। इसमें क्या शक है कि अल्लाह के रसूल से बड़ा प्रचारक कोई नहीं है, नबी से बड़ा दाई, दावत अल्लाह की तरफ दावत देने वाला कोई नहीं है। वेद में कहा गया विवेक का, बहुत महान प्रचारक होंगे, महान प्रचार करने वाले होंगे। तो महान प्रचारक अल्लाह ताला ने खुद नबी को कहा, वह दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। हमने आपको अल्लाह की तरफ दावत देने वाला, दावत इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दावत देने वाला, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला बनाकर भेजा है। तो आप देख लीजिए, इन वेदों के मंत्र में तौहीद है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की रिसालत है, और यह भी कहा गया है कि वो परकोपहा भयभीतम कर्तव्या, सबसे ज्यादा वो कयामत के दिन से लोगों को डराएंगे, परले के दिन से डराएंगे, डे ऑफ जजमेंट से डराएंगे, कयामत के दिन से डराएंगे। इसमें क्या शक है? आप लोगों को कयामत के दिन से डराया करते थे। लोगों, कयामत के आने से पहले कुछ तैयारी कर लो। एक बार आपने अब्दुल्ला इब्ने उमर का कांधा पकड़ के फरमाया, कुन फिद दुनिया का अन्नका गरीबुन व आबिरु सबील। आए अब्दुल्ला, दुनिया में इस तरह रहो जैसे कोई अजनबी या मुसाफिर। इज़ास बहता फला तंतज़िरिल मसा, जब सुबह हो जाए तो शाम का इंतजार न किया करो, और जब शाम हो जाए तो सुबह का इंतजार न किया करो। आए अब्दुल्ला, जब सुबह हो जाए तो शाम
शाम का इंतजार न किया करो, पता नहीं शाम तक तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में, और जब शाम हो जाया करे तो सुबह का इंतजार मत किया करो, इसलिए कि पता नहीं सुबह तुम मुर्दों में लिखे जाओ या जिंदों में। तो आप कयामत के दिन से लोगों को डरा रहे हैं। आपकी बेटी फातिमा एक गुलाम के लिए आई, आपने फरमाया बेटी मैं तुम्हें गुलाम से बेहतर चीज ना दे दूं? का फरमाया क्या? फरमाया बेटी जब बिस्तर पे जाया करो तो 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहू अकबर पढ़ लिया करो, ये तुम्हारे लिए गुलाम से ज्यादा बेहतर होगा। आप आखिरत से जोड़ते थे, हमेशा लोगों को आखिरत से जोड़ा, कयामत के दिन से लोगों को जोड़ा, कयामत का डर लोगों के दिलों में पैदा किया और अल्लाह तबारक व तआला के पास हाजिर होने से भयभीत कराया कि एक दिन तुम्हें अल्लाह के पास तुम्हें जाना है। डरते थे अल्लाह के पास, फरमाया लोगों अल्लाह से मगफिरत तलब किया करो, मैं मोहम्मद मैं अल्लाह का रसूल होकर भी 70 मरतबा मगफिरत तलब करता हूं। एक हदीस में आता 100 मरतबा मैं अपने रब से इस्तिगफार करता हूं, मगफिरत तलब करता हूं। मेरे नबी एक दिन में 70 बार 100 बार अल्लाह से मगफिरत तलब करें और हमें एक बार भी नसीब नहीं होता है। फिक्र आखिरत से जुड़िए और आखिरत के लिए कुछ तैयारी कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, शीश का सर्दी का कोहरे का मौसम है और मेरी ट्रेन भी किशनगंज से है। कैसे जाना होगा, किस तरह पहुंचना होगा, कैसे गाड़ी चलेगी, ये हम उसको भी महसूस कर रहे हैं। शताब्दी पकड़ के मुझे कलकत्ता भी जाना है, तो इसलिए ये 1.5 घंटे के इस प्रोग्राम पर इक्तिफा करता हूं, फिक्र आखिरत से आपको जोड़ता हूं। और हिंदू भाई अगर यहां हैं तो उनको उनकी किताबों के हवालों से बताता हूं कि आप भी आखिरत की तैयारी करो, इस्लाम सनातन धर्म को स्वीकार करो, तौहीद ईश्वरवाद पर अमल करो और मुसलमानों से कहता हूं कि अपने आप को रब से जोड़ें, आखिरत से जोड़ें, कयामत के दिन की कोई तैयारी करें और हलाल और हराम में फर्क करें, अपनी जिंदगी को बनाने की कोशिश करें। उम्मीद है इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करेंगे, अपने गुनाहों से तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे और अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाएंगे। अल्लाह से दुआ है कि बारे अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमा दे और जब तक तो हमें जिंदा इस्लाम पर रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।